wife, married since 12 years, para 4, all cesarean section, last child born 5 years back with last menstrual period 19th August 2020, resident of Thali Chowk, Rahimyar Khan, admitted through emergency on 25th of August 2020 for the with the complaint of irregular heavy menses from 5 years and generalized weakness and shortness of breath from 3 days. Patient was alright 5 years back with regular menstrual cycle of 5 by 28 days with the average flow, irregular menstrual cycle. Patient was uh, patient was alright 5 years back. Then she was having menstrual cycle of 6 by 28 days with average flow, soak 2 to 3 pads per day, no history of intermenstrual bleeding, postcoital bleeding, dyspareunia or dysmenorrhea, but from 5 years she gives history of heavy irregular menses, mm, which, which have no specific pattern and soak 6 to 8 pads per day and 2 to 3 pads at night with the passage of clots and flooding. It is associated with generalized weakness and easy fatigability, shortness of breath on doing uh, work, but no history of chest pain radiating toward left shoulder, cough, and fever. Her diet is deficient of meat, milk, egg, leafy vegetables. No history of excessive intake of tea, cola, coffee, pica, perianal itching, and any hematinics intake. No history of an urinary or bowel complaints, feeling of mass, mm, drugs like OCPs, trazamine, and yellow color tablets, Constant 4. No history of vaginal discharge, lower abdomen pain, heat and cold intolerance, uh, weight loss, anorexia, yellow discoloration of the skin and eyes. Patient never took any treatment for this complaint, and she visited the hospital for the first time with shortness of breath and generalized weakness. She was admitted through emergency, and her in hospital her investigation have been done, and ultrasonography was done, and her HB was found 4 gram per deciliter, 2 pints of blood transfused there. Patient plan of management is not discussed with the patient, and she is taking injectable trazamine injection, TDS, and calcium and hematinics according to treatment ticket. In her obstetrical history, she is para 3, uh, para 4, 3 live issue, one early last child born early neonatal death due to Congo virus, Congo fever at Sheikh Hospital. All are sections done at Sheikh. There is no history of antepartum, intrapartum, and postpartum complication. No history of PPH. No history of wound infection. In gynae history, age of menarche is 13 years. Bleed 5 days after every 28 days with average flow. No pap smear never taken, and she never practiced any contraception. In her last section, her BTL is done. Family history, family past medical and surgical history. There is no history of hypertension, diabetes mellitus, TB, asthma in her and in her family. And she underwent appendicectomy 4 years back, and pyelolithotomy 5 years back for kidney stone, and history 4 cesarean sections at Sheikh Zayed Hospital. In her family history, there is no history of hypertension, diabetes mellitus, TB, asthma, uh, CA, colorectal carcinoma, ovarian carcinoma, or endometrial carcinoma. She have normal sleep and bowel habits. In personal history, she has normal sleep and bowel habits with no known drug allergy. She, in socioeconomic status, her husband is a clerk, earn 28,000 per month. They live in their own house, nine with 9 family members. House is well ventilated.
and but they meet the necessities of life with difficulty. 35 years old 35 years old lady, well oriented in time, place, and person, with height 150 centimeter and weight 45 kg. Paler positive, no history of clubbing. Paler 3 plus, no history of clubbing. Chylonic, leukonicke, jointus, cyanosis. Orodental hygiene is satisfactory. Thyroid not enlarged. No accessible lymph node palpable. Both breasts are symmetrical, having no lump in four quadrant, and areolar nipple complex normal. On chest auscultation, normal vesicular breathing with no added sound. CVS examination, first and second heart sound are audible with no murmur, and on inspection, abdomen is flabby with stria and scar of caesarean appendectomy and pyelolithotomy are present. Uh, Umbilicus is central, moving with the respiration. No prominent veins and pulsation. On palpation, superficial palpation, no tenderness, no. On deep palpation, no viscera or no mass present, and tenderness negative, no visceromegaly. On inspection of on perineal examination, vulva normal looking with normal hair distribution. On pars speculum examination, vaginal walls are normal. Cervix normal looking with bleeding from the os. On bimanual examination, uterus anteverted, bulky, about 8-week size, mobile, cornice is clear, and Okay, on investigations. hello, The investigations. and investigation, blood group and RH factor. A positive. Yeah. Full blood count, HB, TLC, and platelets. Hemoglobin 6 gram per deciliter. G. TLC TLC, 11,000. Platelets 190,000. urine complete, microscopy and biochemistry. What you need on microscopy? Microscopy pus cell, and 1 to in 2. biochemistry, Anji, 1 to 2. G. In biochemistry, sugar and protein. Nil. Blood sugar random. 110. Peripheral blood picture with red cell indices. All indices reduced. G. All indices Hello, are normal. normal. Ultrasonography Which for ultrasound? size of the UTI. आवाज कम आती है मुझे. Which ultrasound you need? Ultrasonography pelvis for Okay. size of uterus, endometrial thickness, myometrial echogenicity, and adnexal pathology. Okay, we'll discuss later. In summary, my patient, 35 years old, para 4, admitted to emergency on 21st of August 2020 with H, HB 5 gram due to heavy irregular menses since 5 years for evaluation and further management of the problem. Okay. What is your differential diagnosis? In my differential diagnosis, polyp, केड़ा polyp? Nasal polyp? nasal polyp, uterine polyp. Okay.
सबम्यूकोजल फाइब्राइड हम्म और हाइपरप्लेजिया। केड़ा हाइपरप्लेजिया? सिंपल किस चीज का? एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया। ओके, व्हाट इज योर और प्रोविजनल डायग्नोसिस? प्रोविजनल डायग्नोसिस मेरी जो है ना पोलिप हो सकती है, ओके वो तो मुझे आप स्कैन बताएंगे तो फिर उस पे कंफर्म होगा। ओके, हाउ विल यू मैनेज? I need ultrasonography before managing my patient. I will complete her all investigations. I will ओके, consult the couple that patient is ਹੁਣ having severe अल्ट्रासाउंड ले लो बाजी, क्या काउंसलिंग करनी है? अब अल्ट्रासाउंड देते। हाँ, लेना अब है कि देते नहीं? अल्ट्रासाउंड। हाँ, ओके, मैनेजमेंट तो उसी पे ही करनी है ना। यूट्रस इज 10 into 8 into 6 centimeter. Endometrial ठीक। thickness is 30 mm. Bilateral adnexes are clear. अब इसकी एंडोमेट्रियल थिकनेस ज्यादा है और साइज भी ज्यादा है। ऐसे लग रहा है मैं डॉक्टर फरजाना के साथ लूडो खेल रही हूँ। रक्षा से असल में मैं ना अभी वो जो है ना डेथ हो गई थी तो मैं उधर चली गई थी। मैं आई अभी 7 साढ़े 7 बजे ना। वो तो मुझे मैंने समझ आ हिस्ट्री गई ली है, हुई थी आज मैंने। आपने कोई नहीं तैयार किया हुआ। तो मैंने ऐसे हिस्ट्री ली हुई थी इसलिए मैंने उसे लिख के जो है ना मैंने पूरा तो किया कि मैं इसको करूं। नहीं नहीं, वैसे और तो दूसरा आपने अच्छा ये है कि किया। इस पेशेंट का हमें खुद बाद में भी नहीं समझ आया था। इसकी एज जो है ना 35 है। हम्म उसने कोई मेडिसिन पहले ली नहीं है। हम्म एंडोमेट्रियल थिकनेस जब तक हमारा अल्ट्रासाउंड भी नहीं हुआ था कि हमें वो हम्म मिलता। साइज हमें 8 वीक साइज यूट्रस मिली है। हम्म और बाकी ऐसा जो है ना हमारे पास कोई शय नहीं थी। तो अब हम उसकी मैनेजमेंट हमें तो यही था कि पहले जैसे उसने कोई ट्रीटमेंट नहीं लिया है, कुछ भी नहीं लिया है, हम्म तो हम उसको पहले उसकी एनीमिया करेक्ट करते हैं, ब्लड लगाएंगे, पैक्सल ट्रांसफ्यूजन देंगे, एचबी बिल्डअप करेंगे और उसके साथ उसे जो है ना वो हार्मोन्स पे डाल देते, ओसीपीज पे डाल देते 3 मंथ के लिए कॉन्टिन्यूसली। बाजी पहले इसका डायग्नोसिस तो बताया ना, डायग्नोसिस पहले क्या बनेगा? बाजी लेकिन डीडी में तो मैंने उसमें पॉलिप रखा है ना। अब अच्छा। इधर इस पे तो मुझे एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया मिला है ना 30 पे इस पे mm। देन हाउ विल यू मैनेज? इसमें फिर एंडोमेट्रियल थिकनेस 30 है और 35 ईयर एज है। वैसे इस एज में है तो लिस्ट लाइकली, लेकिन फिर भी मैं इसके सैम्पलिंग के लिए प्रोसीड करूंगी या नहीं करूंगी। What are indications of endometrial biopsy less than 40 years of age? इसमें तो एक ये हो सकती है कि उसकी फैमिली हिस्ट्री हो कोई सीए की, Okay. या फिर कोई वो मेलिग्नेंसी के हमें साइन सिम्टम मिले उसमें, वेट Okay. लॉस वगैरह, एनोरेक्सिया, हम्म ये सारा। हम्म और तीसरा क्या हो सकता है? और पेन हो, लेकिन पेन इसमें नहीं है उसे कोई। ब्लीडिंग के साथ तो प्रेजेंट कर सकती है। उसने मेडिकल ट्रीटमेंट ली हो, फेल हो गई हो? कुछ भी नहीं ली ना उसने, मेडिकल ट्रीटमेंट उसने ली नहीं है, फेल। तो What is BMI of your patient? What is BMI of your patient? बीएमआई तो उसका है कम, मैं बता 24 डॉक्टर फैजाना भूल गई। 24। हाँ जी 24। Okay. Any history of PCOS? पीसीओएस की हिस्ट्री भी नहीं है। Can she have endometrial carcinoma? मे बी
there may be endometrial carcinoma due to endometrial hyperplasia, but in 35 years there is least likely endometrial What is carcinoma. incidence of As endometrial carcinoma at less than 40 years of age? less than 40 years of age, 1 into 1 lakh. Okay. How will you manage her now? And according to this ultrasonography report, I will proceed for endometrial sampling. Okay. How will you do her endometrial biopsy? I will prepare the patient for endometrial sampling. I will give informed and will do investigation, LFTs, RFTs, and ECG X-ray test How for will you do her pre-anesthesia endometrial assessment. biopsy? I will, I can do in, I will proceed for hysteroscopic guided endometrial biopsy. What is indication of hysteroscopy in your patient? And why you need LFTs, RFTs, and alabalatalab before hysteroscopy? स्टेरोस्कोपी जीए में होती है और जीए के लिए जो है ना वो What are एलएफटीज types आरएफटीज of सारे hysteroscopy? स्टेरोस्कोपी Hmm. स्टेरोस्कोपी What is outpatient hysteroscopy? आउटपेशेंट स्टेरोस्कोपी तो कोई नहीं करते, वो तो इनपेशेंट में करते हैं। बाकी आउटपेशेंट में पाइपल कर सकते हैं या डीएनसी भी कन्वेंशनल भी जीए में करते हैं। ओके, आपने कर ली बायोप्सी, अब क्या करेंगे? बायोप्सी कर ली, फिर उसका हिस्टोपैथोलॉजी रिपोर्ट भिजवा दूंगी 2 हफ्ते के बाद, उसका वेट करूंगी। मीनवाइल उसकी जो है एनीमिया करेक्ट करूंगी, उसे ब्लड ट्रांसफ्यूज करके और साथ में ओसीपी कॉन्टिन्यूस ओसीपीज पे उसे जो है ना भेज दूंगी कि वो रिपोर्ट लेके और फर्दर उसकी रिपोर्ट पे फिर डिसाइड करूंगी और दोबारा काउंसलिंग करूंगी कि अब ये इसकी मैनेजमेंट करना कैसे करते हैं। Endometrial biopsy shows endometrial carcinoma. जी जी। अच्छा, अब उसमें एंडोमेट्रियल सीए में फिर वो हमने उसकी स्टेजिंग करनी होती है। How will you break the bad news? यार डॉक्टर फरजाना, आज तो मेरे बच्चे भी सो रहे हैं। डॉक्टर साहब आज मेरी अपनी पूरी तैयारी नहीं है। How will you manage? इसकी तो स्टेजिंग लेप्रोटमी करूंगी ना। नहीं पूछो ना किस Counseling टाइप तो का है करते हैं। कार्सिनोमा, कौन सा है पहले, एटिपिया है, कौन सा है, क्या है, किस तरह का प्ले है, कार्सिनोमा कौन सा है ये यार? एटीपिया किसने वो बोला तो है? एटीपिया तो हाइपरप्लेजिया में आना है, इसमें कार्सिनोमा में थोड़ी आना है। ये आ अभी गया ना, अभी पक्का आ अभी गया। अभी क्या डायग्नोसिस तो हो गई है? एंडोमेट्रियल अभी सीए आ गया ना। ये है ना। सी एंडोमेट्रियम बता दिया, ओके ठीक है। हाँ, चलें फिर बताएं। सी एंडोमेट्रियम में तो वो स्टेजिंग लेप्रोटमी करूंगी, नहीं शुरू से बताएं लेकिन सारा, इससे जिसमें बताते हैं। पहले स्टेजिंग करूंगी उसकी ना। ये नहीं काउंसिल नहीं फिर करना आप मरीज को? काउंसिल करके बता के ब्रेकिंग और न्यूज। काउंसलिंग से पहले अब जब एंडोमेट्रियल बायोप्सी पे I will सी counsel the एंडोमेट्रियम आया, patient regarding the हाउ final एंडोमेट्रियल diagnosis. कार्सिनोमा इज स्टेज्ड? स्टेजिंग कैसे होती है एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा की? जो स्टेजिंग होती है उसमें सर एमआरआई गाइडेड हाँ आपने एमआरआई सुनी थी? एमआरआई गाइडेड फिगोस्कोप स्टेजिंग है जो ना। यूट्राइन उसमें कार्सिनोमा स्टेज है 1 में उसकी है तो लेफ्ट। स्टेजिंग है ही क्लिनिकल। क्लिनिकल होती है। इसको मैं कल आपको तैयार करके फिर दोबारा 35 सुनाऊंगी। इयर्स की है पेशेंट। यार ऐसा करो, पहले इसको आप डिस्कस तो लोग करें। पेशेंट तो डिस्कस 35 कर लेना। इयर्स की है। हाँ और साथ में जो है ना उसकी, सबसे पहले आपने एमआरआई करना है। हाँ जी, एमआरआई के उसकी आगे फर्दर एक्सपेंड देखेंगे।
डॉक्टर फरजाना अभी ना आप ऑप्स के कर लें, स्पेशली वो सब लोग जो अभी न्यू जिन्होंने स्टार्ट किया है। और जैसे ही ये गायनी की बुक आ जाती है, ये प्रोबेबली 10 मुहर्रम से पहले आ जाएगी, एक्सपेक्टेड तो है। सही तो सही फिर आप लोग गायनी के करना, इसलिए कि सही। आपको टाइम भी मिल गया। आप लोगों को कोई ईमेल आई है? अभी तक तो ईमेल नहीं तो आई। कोई नहीं आई, उन्होंने कहा था कि फ्राइडे को भेजेंगे। ये भी उल्लू के पट्टे हैं वैसे। वो बस बताते हैं कि आप अब अक्टूबर में है, लेकिन यह है कि ईमेल आपको फ्राइडे तक है। अच्छा, फिर अक्टूबर वही 5, 6, 7 ही है प्रोबेबली। 5 से 8 जो है, हाँ जी। हाँ, 5 से 7 या 5 से 8। तो इसका मतलब है हम्म, अभी भी आप लोग संडे निकाल लें तो पूरा 1 महीना है। हाँ जी। यस। ठीक है। और एक तो ये कि आप सब लोग ये प्लान कर लें कि एग्जाम से कितने दिन पहले, आप सब लोगों का सेंटर लाहौर है? हाँ रखा जी, तो लाहौर सबने ही है। यही रखा है। हम्म। हाँ जी, लाहौर है। ठीक है, एक तो आप लोग अपनी छुट्टियां अरेंज कर लें और ये भी डिसाइड कर लें कि कितने दिन पहले आप लोगों ने आ जाना है यहाँ पे। ठीक है। सही। अब मैं तो भी ये सजेस्ट करूंगी, जो इन लोगों ने नहीं तैयारी की हुई वो तो 2 वीक्स पहले कम से कम आए, क्योंकि वो जो घर बैठ के आप लोग करते हैं ना, उसमें आपका उतना टेम्पो नहीं बनता जितना कि आपको यहाँ बैठ के होता है। और जिन लोगों ने तैयारी कर की भी हुई है, इवन देन वो भी एटलीस्ट ये जो 5 मेजर केसेस ऑफ ऑप्स एंड 5 मेजर केसेस ऑफ गायनी जरूर एक दफा प्रेजेंट कर लेना, इसलिए कि वो 6, सही 7, 8 महीने हो गए हैं तो आपके वो रिफ्लेक्सेस और वो सारी चीजें खत्म हो जाती हैं। खत्म हो गया, वो जो पड़ा हुआ था वो भी भूल गया था करीबन। और अभी आप लोग जो है ना ऑप्स पे कंसंट्रेट करें, जैसे ही बुक आ जाती है तो गायनी पे करें, इसलिए कि आप लोग तो सारे एटलीस्ट अल्लाह खैर करे जान छुड़ाए ना इस मुसीबत खाने से। हाँ जी। और जहाँ तक आपके केस की बात है, आपकी बगैर तैयारी के फिर भी अच्छी एफर्ट है, नॉट बैड। ऑल्दो वो छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं, वो प्रैक्टिस से ही आपके जाएंगी कि आपने पेरिनियल एग्जामिनेशन नहीं बोलना, सही लोकल नहीं बोलना, मरमर नहीं बोलना। ठीक है। फर्स्ट वो आप अगर बुक से रटा लगा लें तो वो सही। आपका जीपी सेम है। इन्वेस्टिगेशंस भी आपकी सेम है, लेकिन ये जो बिल्कुल ही आपके है ना रैंडम से वर्ड्स, वो बिल्कुल ऐसे लगता है कि यार यू आर नॉट सीरियस, ये आपका बिल्कुल ही सही सही। कैजुअल है कि अब जी पोलिप हो गया, हाइपरप्लेजिया हो गया। आप कंप्लीट सेंटेंसेस बोलते हैं ना। On the basis of history examination and available investigations, my most probable first differential diagnosis is, और इस पेशेंट में इतनी लो एचबी पे पोलिप नहीं हो सकता, ऑल्दो ये तो बहुत इरेगुलर ज्यादा ब्लीड ब्लीडिंग है। करके आई हुई है, तो फिर इसको हम इतने 4 पोलिप क्या तो हो फर्दर सकता है। लेने चाहिए। ठीक है। 4 हाँ एचबी जी। पेशेंट को हो जाना पॉसिबल है। पोलिप्स इरेगुलर ब्लीडिंग करते हैं बट दे नेवर कॉज हैवी ब्लीडिंग, और वो भी इतनी हैवी ब्लीडिंग के ब्लीडिंग पेशेंट को। पोलिप का मैकेनिज्म ऑफ ब्लीडिंग क्या होता है? नहीं पता। पोलिप की नहीं, जो नेक्रोसिस सरफेस होती है ना होती वहां है, से, ये तो वहां पोलिप से का वैसल जो है ना, हाँ वहां से स्पर्ट करती है। जो डिपेंडेंट एरिया है Slipping पोलिप का, plates. वो अल्सरेट हो जाता है। ठीक है। जी जी उसकी अल्सरेशन जी। से इरेगुलर ब्लीडिंग होती रहती है। अब वो इरेगुलर ब्लीडिंग इतनी हेलो। नहीं हो सकती। हेलो, आवाज आ रही है? जी आ रही है। ठीक है। और वो इरेगुलर ब्लीडिंग पॉसिबल ही नहीं है कि वो पेशेंट को 4 एचबी पे ले जाए। या तो उसका कोई कोएग्जिस्टेंट कॉज ऑफ एनीमिया है, या पेशेंट की अगर पोलिप है भी तो कोएग्जिस्टेंट पैथोलॉजी हो सकती है। ठीक है। ऑल्दो ठीक। एंडोमेट्रियल थिकनेस की रिप्रोडक्टिव एज में कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, बट स्टिल अगर कॉन्टिन्यूअस ब्लीडिंग के साथ आपकी एंडोमेट्रियल थिकनेस मोर देन 16 और 18 mm है तो आप उसकी एंडोमेट्रियल बायोप्सी करते हैं। और इट्स नॉट के 40 ईयर से पहले एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा हो ही नहीं सकता। ऑल्दो इसका इंसिडेंस 1 in 100,000 है, बट 1 in 100,000 भी तो किसी को होता है ना।
मोस्ट कॉमन फिर क्या इसका होगा? फाइब्राइड्स हो सकता है? मेरी हिस्ट्री तो मुझे आवाज ही नहीं आ रही थी, पर कट कट के सब आवाज आ रही म्यूकोजल थी, समझ ही फाइब्राइड नहीं हो सकते हैं। फाइब्राइड इसका हो सकता है, जो जाहिर है उसमें इन्होंने इतना ब्लीड इसकी पेशेंट कर सकती है। एग्जामिनेशन जी बताया है ना, और अगर तो वाकई 8 वीक साइज यूट्रस है, प्रोबेबली शी माइट जी हैव सर। एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया और कार्सिनोमा। मैम इसलिए कार्सिनोमा, यार इसका जो अब मोस्ट एंडोमेट्रियल, सिग्निफिकेंट फीचर है ना देखे ना फॉर मैम, देखे। अच्छा ठीक। तो ना उसकी डॉक्टर हिस्ट्री शाजी, वेट लॉस की, ना नाउजिया वोमिटिंग की, ना एनोरेक्सिया की, कुछ उसकी हिस्ट्री नहीं है उसकी। तो जो एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा है उसके जो सिस्टेमिक साइन सिम्टम्स हैं वो आते ही स्टेज 4 पे हैं। मैम दूसरा पता है क्या इसके कोई रिस्क फैक्टर्स क्या क्या हैं? देखे ना इसमें रिस्क ढूंढे फैक्टर पेशेंट के कोई नहीं है इसके अंदर अंदर, एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया का। कोई है ही नहीं, कोई है रिस्क फैक्टर ना, इसको बीएमआई ज्यादा इवन है, देन ना डायबिटिक, ना हाइपरटेंसिव, ना फैमिली हिस्ट्री, कुछ भी नहीं बट है, रिस्क स्टिल फैक्टर कोई आप नहीं इसके ये अंदर। देखो ना 8 वीक साइज यूट्रस पे कोई छोटा मोटा पॉलिप हो तो वो 4 HB तक नहीं ले जाता मरीज को। सब म्यूकोजल फाइब्राइड भी 8 वीक साइज यूट्रस पे कितना होगा, 2-3 सेंटीमीटर का होगा, इसलिए कि पेशेंट ग्रेविडा 4 है, पैरा 4 है, तो उसकी मल्टीपेरस यूट्रस इज नॉर्मल साइज, and this smaller size submucosal fibroids never cause too much heavy menstrual bleeding to lead patient to hemoglobin of 4. सही। सर्वाइकल मैग्नेगनेंसी आपकी एग्जामिनेशन पे एक्सक्लूड हो गई, या तो पेशेंट का यूट्राइन साइज ज्यादा है, फिर आप उसमें फाइब्राइड या पॉलिप कर सकते हैं। ऑल्दो छोटा अगर पॉलिप हो तो उससे भी साइज ऑफ यूट्रस इनलार्ज नहीं होता, लेकिन जब साइज नहीं इनलार्ज हो रहा तो इसका मतलब ये है कि वो पॉलिप भी 2-3 सेंटीमीटर से बड़ा नहीं है, और जो सब म्यूकोजल फाइब्राइड है दैट इज नॉट लार्जर देन 2 to 3 सेंटीमीटर। और ये जो इतने छोटे होते हैं, जो फाइब्राइड का मैकेनिज्म है हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग का, वो क्या करता है कि एंडोमेट्रियम का सरफेस एरिया इंक्रीज कर देता है। जब सरफेस एरिया इंक्रीज होता है तो जब ब्लीडिंग होती है, पेशेंट को मेंस्ट्रुएशन होती है, तो रेगुलर हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होती है। आपके पेशेंट को इरेगुलर हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग है, तो आपका ये सब म्यूकोजल फाइब्राइड तो वैसे ही निकल जाता है, ठीक है। अब जो कार्सिनोमास हैं दैट कैन कॉज ब्लीडिंग ऑफ एनी पैटर्न। आप इस पेशेंट को फॉलो कर लीजिएगा, और आप लोग ये किया करें कि जिस पेशेंट की हिस्ट्री लेते हैं उसका फोन नंबर जरूर ले लिया करें, कि अगर वो आपको नहीं मिलती या लॉस ऑफ फॉलोअप होती है या आपने उसका फॉलोअप देखना है तो आप उसे कॉल करें कि यार अगर तुम्हारे कोई और टेस्ट हुए हैं तो मुझे व्हाट्सएप कर दो। अगर आप थोड़ी सी पेशेंट से रेपो डेवलप कर लें तो पेशेंट आपको कर भी देता है। हेलो, हिस्ट्री की भी कोई हिस्ट्री नहीं, उस पेशेंट ने कुछ नहीं बताया, ना हिस्ट्रीजम है, नेक नहीं है, ना वेट गेन है, उस तरह का भी कोई वो सिनेरियो even नहीं then है। without any risk factor तो and on this examination she can have hyperplasia or carcinoma. हाइपरप्लेजिया चलो फिर भी मान लेते हैं, कार्सिनोमा तो नहीं अकल मान रही इसको। कार्सिनोमा 35 तक होता है, चलो हम मैंने लोग, खुद 3-4 मैम होता है पेशेंट्स बहुत। देखे हैं अच्छा 35 पे मैम देखे एंडोमेट्रियल आपने? कार्सिनोमा के 30s में। अच्छा, तो मैम उसमें कोई रिस्क फैक्टर थे जो आपने देखे हैं, या ऐसे ही बगैर रिस्क फैक्टर के जिस तरह ये पेशेंट है? विदाउट एनी रिस्क फैक्टर भी पेशेंट हो सकता है, ओके। लेकिन एक जो 2 मैंने पेशेंट्स देखे थे, एक में सिर्फ रिस्क फैक्टर था, ओबेसिटी थी, अच्छा और अदरवाइज डायबिटीज, हाइपरटेंशन, फैमिली हिस्ट्री भी लीस्ट लाइकली होती है एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा में। आप एग्जामिनर डॉक्टर शाजी हमसे पूछते हैं कि आपके पेशेंट में कौन से रिस्क फैक्टर हैं जो फेवर कर रहे हैं आपके डायग्नोसिस को, कोई फिर नहीं हम है उसमें क्या बता कहें दो, उसको? कोई नहीं है। सही। सिंपली आप कहते हैं ना, रिस्क फैक्टर्स फॉर एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा आर ओबेसिटी, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, फैमिली हिस्ट्री, अनअपोज्ड ईस्ट्रोजन या प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, ठीक है। बट एस्ट्रोजन। माय पेशेंट ऑन द बेसिस ऑफ हिस्ट्री एंड एग्जामिनेशन नो सच रिस्क फैक्टर इज प्रेजेंट। अब आप स्ट्रेट फॉरवर्ड ये नहीं कहते कोई रिस्क फैक्टर नहीं है, ये कोई जवाब नहीं होता। आप बताते हैं कि ये रिस्क फैक्टर्स लाइकली हैं, लेकिन मेरे पेशेंट में इनमें से कोई रिस्क फैक्टर नहीं है ऑन द बेसिस ऑफ हिस्ट्री एंड एग्जामिनेशन। ठीक है। ठीक तो है, पेशेंट प्रीवियस 4 भी है, फिर सारा उसका रिव्यू करके उसका
फिर इसका सारा जिस तरह एनीमिया बिल्डअप करके काउंसलिंग करके सारी एमडीडी इन्वॉल्व करके फिर उसका सेक्शन भी है, ज़ाहिर है इसकी डीएनएस भी हो सकती हैं, पॉसिबल है। अब पता नहीं कहाँ से डीएनएस क्यों में क्या उनका था, ये भी नहीं पता हमें। तो वो उसमें हिसाब से सारा यानी कि इसका बिल्डअप करने के बाद फिर हम इसकी वही बनती है, तो फिर वही मैम टीएच बीएसओ ही बनती है, फिर इसकी बीएसओ नहीं टीएच ही बनती है इसकी, और हाँ पर बीएसओ भी साथ बनती है क्योंकि कार्सिनोमा है इसका अगर पेशेंट कार्सिनोमा का। है तो फिर तो आप स्टेजिंग करेंगे ना, स्टेजिंग पे ठीक, वो तो सारा करके तो उसी तरह ही सारा बताना है। ठीक है, ओके ठीक है। और इम्पोर्टेंट इस पेशेंट को कार्सिनोमा बनाने की वजह ये थी कि आपको पता होना चाहिए कि लीथल पैथोलॉजी कैन बी अकर इवन, इसलिए कि यू कांट फिक्स। अगर ये होती ना 10 वीक्स 12 वीक साइज तो आपका आराम से फाइब्राइड एडिनोमायोसिस एडजस्ट हो बन जाना, जाता। ठीक है। पोलिप जो के साइज ऑफ यूट्रस नहीं इलाज करता, लेकिन पोलिप इतनी हैवी ब्लीडिंग भी नहीं करता अनटिल अनलेस पोलिप इतना बड़ा हो कि वो सर्विक्स से बाहर प्रोट्रूड कर जाए, फिर वो अल्सरेटेड उसकी हो सरफेस और वो कॉन्टिन्यूअस ब्लीडिंग कर रहा हो। डॉक्टर हिना है? जी डॉक्टर शाजिया में हूँ। डॉक्टर हिना, लेस देन 40 पे इंडिकेशंस क्या होती हैं बायोप्सी की? अगर मेडिकल ट्रीटमेंट मोर देन 3 मंथ्स जो है वो फेल हो चुकी हो उस वक्त होती है, या फैमिली हिस्ट्री हो पेशेंट की, या फिर पेशेंट जो है वो हैवीली ब्लीड करे और एनीमिया काज कर दे, ये इंडिकेशन है। तो अब इस पेशेंट की बनती है या नहीं बनती? हाँ जी बनती है इसकी एंडोमेट्रियल बायोप्सी। इसलिए कि इसको सीवियर एनीमिया हो गया जी और पेशेंट की हैवी ब्लीडिंग भी है। डॉक्टर फरजाना, जी मेरे ख्याल है कुछ लोगों की ना हिस्ट्री मिस हो गई है, इसकी हैवी ब्लीडिंग की हिस्ट्री आप एक दफा रिपीट करें। और गायनी में पहले गायनी की हिस्ट्री बताते हैं, बाद में ऑप्स की बताते हैं, आपने पहले ऑप्स की बता दी। डॉक्टर फरजाना, हेलो। लगता है डॉक्टर फरजाना कहीं चली गई। डॉक्टर नगीना और डॉक्टर असमा है हमारे साथ न्यू, इन्होंने कब प्रेजेंट करने हैं? लगता है सारों को म्यूट करना पड़ेगा। नगीना शाजिया नगीना तो कह रही थी कि वो 1-2 दिन में प्रेजेंट करेगी। मेरी आज सुबह ही उससे बात हुई थी। जी डॉक्टर फरजाना। हाँ जी, आ रही है अब मेरी आवाज? हाँ जी आ रही है। मैं कह रही अच्छा, थी मुझे सबकी आवाज आ रही है लेकिन मेरी नहीं आ रही थी। ब्लीडिंग की हिस्ट्री इसकी दोबारा बताएं। डॉक्टर शाह जी, इसके यही हिस्ट्री है कि 5 ईयर से उसके इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल है और उसका कोई स्पेसिफिक पैटर्न नहीं है। उसे कोई डेट नहीं याद रहती, कुछ अमाउंट महीने ऑफ में कई ब्लीडिंग दफा आ कितनी जाती है ब्लीडिंग में। पोस्टपार्टल ब्लीडिंग की कोई हिस्ट्री नहीं है उसे, डिस्मेनोरिया नहीं है उसे, कोई डिस्पेरोनिया नहीं है। और पहले उसने कहती है मैंने घर वालों को मैंने वैसे बताया, लेकिन उन्होंने कहा ऐसे होता रहता है, कोई मेडिसिन ले ली, कोई ट्रीटमेंट नहीं ली। जब एंड पे HB 4 तक आ गई और उससे चलना फिरना बहाल हो गया तो फिर उसको लेके आए हैं। नहीं उसके नंबर ऑफ ये पैड्स पेशेंट इधर ही हमारे नंबर ऑफ पैड्स उसे 6 to 8 पैड्स पर डे इस्तेमाल करती है और 2 to 3 एट नाइट करती है, और फ्लडिंग भी होती है और क्लॉट्स भी पास करती है। कब से है इसे? 5 ईयर लेकिन से ही है? ये इसको 5 ईयर से है ऐसे, लेकिन अभी 3 महीने से जो है ना 3 ऐसी month बहुत से ज्यादा है ना? हैवी हो रही है। तो इसका प्रोबेबली कार्सिनोमा निकलना है, इसे आपने फॉलो करना है। ये हमारे वार्ड में एडमिट है और हमारे हॉस्पिटल का एम्प्लॉय है, उसकी बीवी है। बस ठीक है, फिर तो वैसे पता अभी चल उसका स्कैन नहीं हुआ था तो मैंने जो है ना वो मैंने देखा नहीं।
शाजिया, इसमें हम पाइपल नहीं कर सकते, जरूरी है हम स्टेरोस्कोपिक बायोप्सी करें? पिपेल करना है इसका। और सेकेंडली ये कि अगर हिस्टोस्कोपी में, पहली बात तो ये कि इसमें कोई इंडिकेशन नहीं है हिस्टोस्कोपी की। सेकंड ये कि अगर आपने हिस्टोस्कोपी कोई इंडिकेशन भी है तो आपने आउट पेशेंट हिस्टोस्कोपी करनी होती है, नॉट इन पेशेंट। बेसिकली मुझे लगता है डॉक्टर फरजाना ने लेकिन आउट पेशेंट हमारे यहाँ नहीं होती ना, हमने देखी अभी। तो इन पेशेंट होती है आपके पास? हाँ, इन पेशेंट तो होती है हमारे पास हिस्टोस्कोपी। शाजिया अब शुरू हो गई है, हाँ स्टेरोस्कोपिक डॉक्टर शाजिया माजिद ने शुरू कर दी है, अब होती है। चलो फिर तो बड़ी बात है। बट ये कि जो आउट ऑर्थोस्कोपी पेशेंट है है, वो ज्यादा स्टेरोस्कोपी है। सेफ है, विदाउट एनेस्थीसिया है, उसमें सिर्फ आप एक पेनाडोल देते हैं। और इस पेशेंट की तो वैसे ही पिपेल बनती है। और इन पेशेंट तो ये ना शॉज में एक चैप्टर है हिस्टोस्कोपी का, उसमें उसकी इंडिकेशंस आउट पेशेंट की, इन पेशेंट की, और उसके बाद उनकी कॉम्प्लिकेशंस, थेराप्यूटिक हिस्टोस्कोपी एंड डायग्नोस्टिक हिस्टोस्कोपी, वो सारा इन डिटेल दिया हुआ है, वो आप देख लीजिएगा एक दफा। चलो ये तो गुड है अगर वहाँ पे हिस्टोस्कोपी शुरू हो गई है तो। लेकिन तो अब अब आप सारों की हिस्टोस्कोपी बोली जाए। नहीं तो रीमियर खान की बात कर रही हैं आप? हाँ डॉक्टर आसफा। अच्छा शाजिया मैंने नहीं देखी इसलिए मैं नहीं बोलूंगी, मैं तो वही बोलूंगी जो मैंने 6 साल पहले देखा। और दूसरी बात ये कि डॉक्टर हिना, जब नहीं बनती, जो हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग की गाइडलाइन है ना, उसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि जो फर्स्ट आपकी है दैट इज आउट पेशेंट एंडोमेट्रियल बायोप्सी एंड इंडिकेशन ऑफ हिस्टोस्कोपिक गाइडेड एंडोमेट्रियल बायोप्सी आर, अगर आपकी आउट पेशेंट फेल हो जाए, कोई फोकल लीजन हो, या एक और है, 3 थी, पेशेंट ऑन टमोक्सिफेन और पेशेंट ऑन टेमोक्सिफेन पे हो पेशेंट, अदरवाइज तो आउट पेशेंट ही करते हैं। पता है ये सब लोग करते क्या है? हाँ जी, ये मिक्स करते हैं हाइपरप्लेजिया और हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग की मैं प्रिपेयर गाइडलाइन। करते हैं, हम लोग तो करते होते हैं, पेशेंट अगर आती है ओपीडी बेसिस पे। डॉक्टर ये सब ने ना हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग की गाइडलाइन जरूर पढ़नी है। और डॉक्टर फरजाना अभी ऑप्स, बल्कि सब लोग जो न्यू है वो स्पेशली अभी ऑप्स के करें जब तक कि इनके पास गायनी की बुक नहीं आ जाती। ठीक है, चलें गुड। डॉक्टर फरजाना अब आप सो जाएं। कहाँ गई हुई थी? मैं वो भाभी की अम्मी फौत हो गई थी तो मैं उधर गई हुई थी, मैं अभी 7 बजे वापस आई। चलिए अब आप रेस्ट करें। तो आप मेरे पास पहले जो किसी हिस्ट्री को लिखी कह हुई थी दिया फिर करें मैंने ना कि उनको वो आपकी जगह प्रिपेयर कर ले केस। और बैकअप में सब लोग एक एक केस तैयार भी रखा करें ना, कि इन नहीं केस अगर जिसकी टर्न है वो नहीं प्रिपेयर करता तो फिर आपकी एक प्रॉपर केस डिस्कशन हो जाती है। वो अब ऐसे है ना कि परसों मैं आसपास से कह चुकी थी, अब अच्छा नहीं लग रहा था कि आज भी मैं उसे कहूँ, इसलिए मैंने कहा चलो हिस्ट्री तो आपने हमने मैंने अच्छी एफर्ट की है। पता जब आप करते हैं तो फिर ही आपको जब चीजें डिस्कस होती हैं तभी आपको याद भी रहती है। हाँ सही। चलो ठीक है, चलो किसी का कोई थैंक यू। क्वेश्चन?